welcome back to my channel Explore with Steffi. If you have seen my previous video, you will be knowing I was staying in a beautiful stay in Bogmalo Beach. It's a beautiful beach in South Goa. In today's video, I will show you some hidden beaches in South Goa and a hidden gem of South Goa, and I am sure you're gonna love that. South Goa is less explored and is known for its scenic beauty, mesmerizing views and the blue waters of the ocean. So let's see all of this in this video. So without any further ado, let's start today's video. Just got up in the morning and let's see the view outside from the balcony. How calm and beautiful everything is looking. गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम आए थे तो बहुत देर हो गई थी, शाम हो गई थी, तो हम बाहर ज़्यादा जा नहीं पाए। बहुत ज़्यादा टायर्ड थे इसलिए जल्दी सो भी गए थे। आज सेकंड डे है। आज देखते हैं कि हम बोगमालो बीच से आगे और क्या क्या घूम सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर देखते क्या करते हैं। So I got ready and I am wearing this today. And I am all set to go out, and if you want to know anything about this beautiful stay, you can check out my previous video. मैं निकल रही हूँ and यहाँ के ओनर से ही हमने स्कूटी रेंट पे लिया है, which will make it easy for us to explore South Goa very well. और जैसे ही मैं अपने स्टे से निकली एंड वो रहा बोगमालो बीच। सो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। एंड द ब्यूटिफुल सीन्स व्हाइल राइडिंग। And we reach. So there is this shack. You can park your vehicles here and then go and explore this beach. I am all covered up to save myself from tanning, and here I go. बीच देख के टैनिंग वगैरह सब भूल जाते हैं एंड पिक्स क्लिक करने का दिल करता है। So let's go and थोड़ा आगे जाके बीच को एक्सप्लोर करते हैं। Wow, it's amazing. The name of this beach is Holland Beach, and see how beautiful the water is looking. This beach is really very beautiful, calm and silent. You can see people are already there. I feel like going there and enjoy, but today we have to explore other places as well, so not possible. And now I'm going near the beach to click some pics. तो कुछ देर यहाँ रुक के and now it's time to say bye to this beautiful place. और फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकल गए।
सो ये आ गए हम पार्किंग पे एंड नेक्स्ट प्लेस में जाने से पहले ये हनुमान जी का टेम्पल आता है। तो चलिए पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं। मंदिर अच्छे से दर्शन करने के बाद वो जो आपको बीच दिख रहा है ना, वही हम जा रहे हैं। So this is that beautiful beach and it is called the Baina Beach. You can find all the water sports here. If you want to do any water sports, you can do it here as well. So, यहाँ पे कुछ देर रुक के फिर हम जा रहे थे थोड़ा और साउथ की तरफ। फिर मुझे एक इतनी ब्यूटीफुल सी जगह दिखी तो मैं रुक गई यहाँ कुछ देर के लिए। This place is full with greenery and lotuses everywhere. So now we are heading towards another unexplored beach in South Goa. And वो आपको सामने बीच दिख रहा होगा। And this is the beautiful unexplored Velsau beach of South Goa. And you can see the beautiful blue waters here. So, after being there for some time, then I was feeling so hungry that we are literally searching for such places to taste the authentic Goan food. तो रास्ते में ही हमें ये साइन बोर्ड दिखा गोवन फूड का एंड इनका खाना तो क्या ही बोलूं मैं, अभी आपको दिखाती हूँ। So, we ordered this mackerel thali and this kingfish thali, which is served with some Goan delicacies. Fish इतने fresh and tasty थे यहाँ के that we ordered 2 more pieces of kingfish and a mackerel rava fried. The food was really very tasty there. मैंने आपको साइन बोर्ड दिखाया है, अगर आपको ये वाला रेस्टोरेंट मिले तो जरूर ट्राई करो, खाना बहुत अच्छा है इनका। तो अभी हम जा रहे हैं उस हिडन जेम को देखने जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। बट रास्ता काफी रफ है इस जगह का, बट आई एम श्योर ऐसे रफ रोड पे आगे जाके जो हमें देखने को मिलेगा ना, वो वर्थ जरूर होगा। So we reached here and this is the hidden gem I was talking about, the Heart Lake. So ये हार्ट शेप में है एंड इसीलिए इसे हार्ट लेक कहते हैं। आप अगर ऊपर चढ़ोगे तो आपको ये हार्ट शेप बहुत अच्छे से दिखेगा, बट फ्रॉम हियर यू कैन सी द आर्क ऑफ द हार्ट शेप। So, ये फोटो मैं रेफरेंस के लिए दे रही हूँ, आप ऊपर चढ़ के देखो तो शायद आपको ऐसा दिखे। It's really very beautiful and आपको और एक चीज दिखाती हूँ। See this place, guys. This place is looking so amazing. अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप नीचे जाके आराम से पिक्स वगैरह क्लिक कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, इट्स वर्थ विजिटिंग। हमारे पास टाइम कम था क्योंकि शाम होने से पहले हमें यहाँ से निकलना था। रास्ता काफी खराब है, शाम के बाद निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाइम होता ना तो पक्का यहाँ हाफ एन आवर से ज्यादा ही रुक जाती मैं। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है।
सो अब हम जा रहे थे और जो हम कल एंजॉय नहीं कर पाए वो हम आज करेंगे। सो दिस इज आवर स्टे एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस स्टे आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द रूम टूर एंड टैरिफ। If you want to know, you can go and check out that video. So हमारा जो स्टे है बिल्कुल बीच के पास है एंड वो जो बैल्कनी आपको दिख रही है ना वही स्टे है हमारा एंड वहां से काफी अच्छा व्यू आता है। कुछ देर हमने रेस्ट किया और जैसे ही देखा हमने कि सनसेट होने वाला है कुछ देर में, तो अब हम बीच साइड जा रहे हैं। See how beautiful it is looking. कल हमने इसी चीज को मिस कर दिया था। एंड वैसे भी आज हमारा लास्ट डे है बोगमालो बीच में, तो आज हम यहाँ बीच पे रुक के सनसेट को आराम से एंजॉय करने वाले हैं। This is the golden light hour time and everyone is enjoying the sunset sitting here. So here I am enjoying my time clicking pics and making videos. Bogmalo Beach is worth visiting, guys. Do come here and stay. You're gonna love this place. ये था पूरा आज की वीडियो में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कल हम यहाँ से किसी और बीच में जाने वाले हैं जो साउथ गोवा में ही है, तो हमारा स्टे वहाँ पे होने वाला है। उस स्टे के बारे में पूरा डिटेल्स एंड एवरीथिंग आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज जो मैंने आपको आसपास के बीचेस दिखाए या हार्ट लेक दिखाया, अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गोवा के और वीडियोस आने वाले हैं। टिल देन बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।